मिस्टर बीस्ट किसी को ऑनलाइन फॉलो करने के लिए कितने पैसे लेता है? पैसे कितने लिए थे उसने मैं पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा। अभी इट्स एक्चुअली एनडीए है हमारा। मुझे लगता है कि दुनिया ना करेक्टिव मशीन है, तो जब जिसकी नीड होती है वो आ जाता है। शार्क टैंक 5 साल पहले भी तो आ सकता था, क्योंकि कोविड के बाद स्टार्टअप बूम हुआ, तो इंडियन ऑडियंस का बिहेवियर कल्चरल शिफ्ट हो रहा है अभी। नाउ पीपल आर गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स लाइक इंडिया, एस्ट्रोलॉजी, कल्चर, रिलीजन, एंड नाउ दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। आई कैन अप्लाई दिस फर्स्ट प्रिंसिपल टू एनी कॉन्टेक्स्ट। सिंपल सी बात है, एल्गोरिथम को भाई पैसा कमाना है। बिकॉज इफ यू ट्रूली अंडरस्टैंड कि कोई भी वीडियो नहीं चली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको ये पता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसका बिहेवियर उस कंटेंट को लेके कैसा था, एंड जब आप ऑडियंस बिहेवियर को समझ जाती हो, एंड अप क्रैकिंग एवरीथिंग। एक नंबर भाई। I'm sitting here today with Aryan, the founder of Binge Labs. मुझे 3 बातें बताइए जो मैं आपकी पब्लिक प्रोफाइल लिंक्डइन पे जाके जान सकता हूँ, और 3 ऐसे बातें बताइए जो नहीं जान सकते हैं हम। In terms of giving a humorous intro, I honestly don't know, because humor is not my first nature. But interesting question. About my LinkedIn, yaar, if you actually go to my LinkedIn, I haven't even put my company name on my LinkedIn. I haven't probably posted on LinkedIn in the last 4 years. I don't open LinkedIn. I barely open it once a week if I have some leads inflowing. So in fact, there is nothing about me, what I do, that you can learn from LinkedIn right now. But if there is still 3 things that you would want to learn from my LinkedIn, I think one is that I've done crazy amount of shit, like crazy amount of work in all kind of domains. My first internship, I was hired as a social media intern, but interestingly enough, it was an event management company. What I ended up doing was to keep flower vases on the tables in the event. I don't know why I did that. So that's fun, that I've done crazy amount of work in all kind of domains, number one. Number two is that I am very particular about what I do, what I talk about. You won't see me putting, and not just on LinkedIn, but like on other stuff as well. Primarily on Instagram and Twitter, I'm very particular about what I talk about. You won't see me putting party stories. You won't see me putting घूमने फिरने के stories. You won't see me putting food stories. I am very particular about what I talk about, which is my work, my content, my insight. That's two. Uh, Third, I think what you can learn from my LinkedIn is that yes, we have been able to contribute to the creator economy, probably with the best of the folks. What you can't learn from my LinkedIn is one, my company, which is Binge Labs. I haven't put it anywhere. Fortunately, it's been great, so I haven't gotten the need to put it somewhere. Number two is that you can still build stuff without shouting it out loud. I don't shout what we do. You won't see us anywhere, but we still do our work. ठीक है? मैं नहीं बताता ही नहीं हूँ। यार माई पेरेंट डोंट नो मैं क्या करता हूँ। दे नो, कुछ तो कर लेता है, वीडियो हो जाता है कुछ। आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू टेल देम, एंड आई डोंट वांट टू टेल देम, तो मैं बताता ही नहीं। मेरी मम्मी से एक पड़ोस की आंटी ने पूछा था, क्या करता है आपका बेटा। मम्मी ने पहले समझाने की कोशिश की, बट वो भी हिम्मत हार चुके, बोल देती यूपीएससी कर रहा है। बिकॉज वंस यू से दैट यू आर डूइंग यूपीएससी, आप अगले 5 साल तक फ्री हो। आप अगले 5 साल तक जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, बोल दो यूपीएससी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा, निकल जाएगा, तो ठीक है। And number three, what you can't learn from my LinkedIn is that I don't know, two ही रखते हैं। बट डिड दे नो दैट आप इस लाइन में घुस रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पहले से ही, वर्सेस टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जो कि बोलते हैं बच्चे को इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल फील्ड में घुस जाएं? हाउ वाज इट? नहीं यार, सो आई बीन ब्लेस्ड बाय, मतलब आई हैव वेरी वेरी एक्सट्रीमली सपोर्टिव पेरेंट्स। मेरा कॉलेज 2022 में हुआ था, 24 भी खत्म होने वाला है, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में दे डोंट नो व्हाट डू आई डू, हाउ मच मनी आई मेक, irrespective the fact that I make more or less, that is irrespective, but they don't know. पेरेंट्स में होती है कि यार बच्चा क्या कर रहा है हमारा, बट वो उनको पता है कुछ तो कर लेता है, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। और कीड़ा तो था, मतलब बचपन से ही था, मतलब बीन डूइंग दिस, अगर 8 साल से आप कर रहे हो तो मतलब उनको भी दिख ही जाता है। तो दे वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, जो करना है कर ले, कुछ इलीगल मत करना। ओके, एक सवाल, जब
व्हेन मैंने आपकी स्टोरी के बारे में जाना, और आई वाज डाइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन कि यार ये तो पूछना ही आर्यन से मुझे, मिस्टर बीस्ट किसी को ऑनलाइन फॉलो करने के लिए कितने पैसे लेता है? और अगर यार पैसे नहीं इसको लेता है तो क्या लेता है? पैसे कितने लिए थे उसने, मैं पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा। अभी इट्स एक्चुअली एनडीए है हमारा, तो आई कांट टेल। बट व्हाट इज इट दैट यू फील कि वो आपको फॉलो करते हैं? आपने कभी इंटरेक्ट किया है उनके साथ? व्हाट इज द स्टोरी? सो फर्स्ट, आई मीन डिस्क्लेमर, पैसे वैसे नहीं लिए थे ऑफ कोर्स। आई मीन सोशल मीडिया टेक्स थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वेरी वेल। इनफैक्ट आई आल्सो डू दैट समटाइम्स फॉर माय क्लाइंट। द पॉइंट इज कि यार, तो 2021 से मैंने ट्विटर पे चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट की थी। और सी, देयर इज ऑलवेज अ गैप दैट यू फिल इन द मार्केट जो आपको रिकग्निशन देता है। अब वो गैप आप कॉन्शियसली फिल करो चाहे सब कॉन्शियसली फिल करो, फर्क उतना का ही रहता है। तो जब मैं ट्विटर पे यूट्यूब के बारे में बात करता था, उस टाइम पे आई वॉज मोर यूट्यूब फोकस। नाउ वी डू यूट्यूब इंस्टाग्राम बट उस टाइम पे यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस था। तो मैं यूट्यूब के बारे में इंसाइट्स पोस्ट करता था, है ना। और वो जो इंसाइट्स होते थे वो बहुत ही फर्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड होते थे, बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चीज़ सीखनी है, इरिस्पेक्टिव द फैक्ट दैट यू आर लर्निंग कंटेंट, यू आर लर्निंग फाइनेंस, यू आर लर्निंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आपको अगर फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता है तो यू कैन क्रैक एनीथिंग। नाउ ट्विटर पे ना यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट बहुत है, ठीक है। काफ़ी लोग यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन के बारे में इनसाइट पोस्ट करते हैं कि कैसे कंटेंट बनाएं यूट्यूब हाँ, पे। मतलब हाउ डू यू ग्रो योर चैनल, आपके इनसाइट्स क्या हैं, आपको क्या करना है, आप क्या क्या कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट, राइट। और मैं भी पोस्ट करता था। फर्क इतना था कि जो बाकी लोग पोस्ट करते थे वहां पर बहुत ज्यादा एल्गोरिथमिक बातें होती थी कि एल्गोरिथम ये करता है, एल्गोरिथम वो करता है, एल्गोरिथम दिस, एल्गोरिथम दैट। To me, it didn't make a lot of sense. Not that they are right or wrong, but that's not just my way. मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट की। ओके, देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग थिंग्स, राइट। यू पोस्ट अ वीडियो, अगर ये वीडियो काम करी तो वन वे ऑफ सेइंग दिस, अच्छा एल्गोरिथम ने इस वीडियो को पुश किया। सेकंड वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट अगर ये वीडियो काम करी तो माय ऑडियंस लाइक दिस वीडियो। वाइस वर्सा, अगर ये वीडियो नहीं चली तो वन वे ऑफ सेइंग दिस क्या, एल्गोरिथम ने इस वीडियो को पुश नहीं किया। सेकंड वे ऑफ सेइंग दिस, अगर ये वीडियो नहीं चली तो मेरी ऑडियंस को मेरी इस वीडियो का सर्टेन पार्ट पसंद नहीं आया, एंड दैट इज वाई, क्योंकि ऑडियंस ने इंटरेक्ट नहीं किया तो एल्गोरिथम ने पुश नहीं किया। तो माई थिंग इज ऑलवेज ब्रेक डाउन स्टफ टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स। वो वाला गैप मैंने अनकॉन्शियसली फिल करना स्टार्ट किया। तो माई ट्वीट स्टार्टेड गेटिंग some attraction, not in terms of numbers. I have barely 11K followers on Twitter, but out of nowhere Mr. Beast followed, so I assumed that would be because of those insights, because I didn't post anything else. That's one. Secondly, yes, I have interacted with him multiple times, in fact. So the context of him following me was this एक event होता है Vid Summit करके. Vid Summit is like one of the biggest creator economy event that happen around the globe. Like they have speakers like Nas Daily, Gary Vee, and all of that. I was the first Indian to be invited there, and till the first one to be invited there, I had a speech there. I could not go क्योंकि 2022 की बात थी, उस टाइम US का वीज़ा नहीं लग रहा था। But I think I can still call myself a speaker. My name is still there on the website. So that is the reason. So उसका मेरे पे text आया था that hey, we want to invite you there. That was, and then I have had a chance to help him and his team in his Hindi channel. So I used to DM him on Twitter around a lot of things around his Hindi channel कि यार आप हिंदी चैनल में ऐसे कर रहे हो, ये कर दो, टाइटल चेंज, थंबनेल चेंज। So he then passed on my contact to his team, and then team reached out, so I got a chance to help. And then when he was coming to India, I texted him if you need any help, and he replied. So yeah, we've interacted like 3-4 times, but not lately. Yeah, that is the fundamental story. क्या जादू है उनमें, क्या जादू है उनमें एज ए क्रिएटर? यार, मिस्टर बीस्ट का वन ऑफ द सीक्रेट्स इज ऑब्सेशन, राइट। एंड आई थिंक ऑब्सेशन एज अ वर्ड ना बड़ा, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, तो हमारी जनरेशन ना ऐसे वर्ड्स को ना बड़ा ओवर यूज करती है बट समझती नहीं है। लेकिन सी दिस वर्ड ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, राइट। लाइक इफ यू रियली ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, आई हैड ड्रॉप्ड कैट टू डू दिस, राइट। और मैं एनालाइज कर रहा था कैट छोड़ो ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो। और मतलब इट्स अ टफ कॉल, बिकॉज आप नहीं छोड़ सकते कैट, एंड आई हेल फ्रॉम झारखंड, तो वहां से आके तो आप कैट नहीं छोड़ सकते। उस टाइम पर आई हर्ड फ्रॉम समबडी दैट आर यू रियली ऑब्सेस्ड विथ योर आर्ट।
तो मेरे को समझ में आया कि आई एम ऑब्सेस्ड लाइक इवन नाउ आई एम हेविली ऑब्सेस्ड विद व्हाट आई डू एंड इफ यू रियली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ व्हाट डज ऑब्सेशन रियली मींस यू कैन क्रैक इट. सो मिस्टर बीस्ट का एक ही सीक्रेट है. अब और भी चीजें हैं बट द फंडामेंटल थिंग इज ऑब्सेशन बिकॉज इफ यू आर रियली ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग यू विल डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल which people don't understand. Content creation is a lot about obsession. If you're not obsessed, don't do content. लगे रहो. अगर ट्रू ऑब्सेशन है तो देखो मेहनत तो गधा भी करता है तो मेहनत से जिंदगी नहीं चलती. कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं चलता. बट अगर मेहनत एक ट्रू ऑब्सेशन का कॉन्सिक्वेंस है तो लगे रहो. बट विथ ईच स्टेप यू टेक इन द जर्नी यू हैव टू इम्प्रूव. अदरवाइज 1500 वीडियोस घटिया बना दो कोई पॉइंट नहीं है. सही बात है. इम्प्रूव समथिंग एवरी टाइम यू ट्राई आउट. यार फंडामेंटली मैं तो ये बोलता हूँ ट्रीट एवरी वीडियो एज अ डेटा पॉइंट. ईदर अ गुड डेटा पॉइंट और अ बैड डेटा पॉइंट बट इट इज अ डेटा पॉइंट. गॉट इट. आपने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जो शायद सबको ना पता हो. ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग. यार फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि आप किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ो. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करो और तब तक ब्रेक डाउन करो जब तक आपको उसका अंडरलाइंग रीजन ना पता हो. जो अंडरलाइंग रीजन ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो. मैं कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. तो मेरा ऐसा मानना है जो हम बेंच लैब्स में भी जो काम करते हैं रीजन व्हाई वी हैव बीन एबल टू डिलीवर सक्सेसफुल वर्क वेरी कंसिस्टेंटली इज बिकॉज वी बिलीव इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स. ठीक है, अब दोनों काफी रिलेटेड है. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द वर्ल्ड वर्क्स ऑन पैटर्न्स. हर चीज का पैटर्न है एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस चीज का पैटर्न है. मतलब लेट्स से इफ यू वांट टू मेक अ वीडियो, इफ यू वांट टू डू अ पॉडकास्ट, यू वुड वांट टू सी कि किस टाइप के पॉडकास्ट आर वर्किंग. So you have to identify a pattern of the podcasts that are working. Now, once you identify the pattern, the next step is what is the underlying first principle behind that pattern. Just for an example, if Ranveer makes podcast around Bhoot Pret and all of that, that works. Now, that is a pattern that you can crack. कि रणवीर के पॉडकास्ट पे रणवीर के चैनल पे भूत प्रेत वाली वीडियो चलती है. Now you will go to 5 other channels who talk about the same subject. You will immediately end up cracking a pattern that anybody who makes content around Bhoot, Pret, Atma, this works. I've gotten a pattern. Now what I have to do is to carve out the underlying first principle behind that pattern. और वो first principle क्या है कि क्योंकि अभी लोगों का mentality, क्योंकि इंडियन ऑडियंस का बिहेवियर कल्चरल शिफ्ट हो रहा है. अभी इंडिया में कल्चरल शिफ्ट हो रहा है. राइट नाउ पीपल आर गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स लाइक इंडिया, एस्ट्रोलॉजी, कल्चर, रिलीजन एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. नाउ आई कैन अप्लाई दिस फर्स्ट प्रिंसिपल टू एनी कॉन्टेक्स्ट. नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड अ पैटर्न ऑफ दीज पॉडकास्ट वर्किंग. बट अगर मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल मिल गया तो मैं उसी फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके मल्टीपल सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स निकाल सकता हूँ. दैट विल ब्लो अप. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. बिकॉज इफ यू ट्रूली अंडरस्टैंड कि कोई भी वीडियो नहीं चली या चली, कोई भी कंटेंट पीस काम कर रहा है या ना कर रहा, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आपको ये पता है कि वो इसलिए नहीं चली क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है उसका बिहेवियर उस कंटेंट को लेके कैसा था. एंड जब आप ऑडियंस बिहेवियर को समझ जाती हो एंड अप क्रैकिंग एवरीथिंग. तुक्का नहीं है. तुक्का नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है. नहीं है. एक्सेप्ट इन 0.01% ऑफ एनोमलीज वेयर द एल्गोरिथम्स रियली फक अप. तुक्का नहीं है. Insta still fucks up more. YouTube fucks up very less. So I would say that if your video is not working, just assume that it's your fault. सही बात है. एल्गो पे नहीं डाल रहे हैं हम. एल्गो नहीं, एल्गो अब ये कर रहा है, एल्गो अब वो कर रहा है. नहीं, आप पैटर्न नहीं समझे अभी तक. आप उसकी ह्यूमन थॉट या नेचर नहीं समझे उसके पीछे. इज वेयर यू कैन बी बेटर. सिंपल सी बात है. एल्गोरिथम को भाई पैसा कमाना है. Any algorithm has only one goal, to make money. Now if you're making good videos, you are essentially keeping people on the platform more. It is helping the platform make more money. तो अगर आप अच्छी वीडियो बनाओगे तो logically why would any platform be against you? Unless you are violating their guidelines. So you making good videos and the algorithm not pushing them is the contradiction. It can't exist. It's against the fundamental philosophies of what the algorithms want to make more money. If it's not pushing good videos, it is losing out of that money. And I read up about you. आप कॉमर्स कॉलेजेस के IIT में गए थे. You went to a very famous college which is हंसराज.
बहुत अच्छे ट्रेडिशनल करियर पाथ्स है कंसल्टिंग वगैरह के। आपके आई थिंक पियर्स भी बहुत सारे उस स्ट्रीम में गए होंगे। कभी लगा दैट दिस इज समथिंग आप छोड़ रहे हैं फॉर, एंड ये आपको कब पता चला कि यही करना है? Honestly, I don't think money is a benchmark. I don't want to talk about money a lot in this context, but the fundamental truth is that anybody, सबको realize तभी होता है जब बैंक में पैसा आता है। Fact है, मानो ना मानो। It's very mature of you to say that. If content does not happen and careers by chance नहीं बनते इस इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है आप में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं दैट मेड यू अ फिट फॉर दिस? मतलब आप ये काम जो आप एक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं देन एनी अदर पर्सन हु डज नॉट पोजेस दैट स्किल अभी। I'd say the same thing. One, obsession. Second, pattern recognition. And third, extreme curiosity to know random shit in life. मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, हमारी जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ते नहीं है। हाँ, उनको ठीक है, मतलब दे डू व्हाट दे डू, बट आई थिंक रीडिंग इज इम्पोर्टेंट एंड आई रीड अ लॉट। आई रीड, I mean, अभी a month back, I was reading the history of how door handles was made. I mean, who reads that? I do, because अच्छा लगता है। तो I think obsession, pattern recognition and curiosity. क्या आपने कभी सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएटर ही न क्यों ना पहले बन जाऊं? इफ मेरे को पैटर्न समझ आते हैं, मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, मैं ही क्यों ना बोलूं कैमरा के आगे? नहीं, मैं I think about it every day, but अच्छा। that's not my calling. Yeah, my calling is to be able to work with high impact people and to make high impact in this world. See, I'll tell you, I am a teacher by my heart. ठीक है? अच्छा। I want to teach. I think education is the highest tool you can have in order to transform the world. Now think about it. I have a team of 30 people, right? And it's growing. One is that I am getting a chance to teach them. Now, when I get a chance to teach them, they're able to produce impact. Now, when I teach 30 people, the impact they produce is multifold. That's fun. Clients, देखो, we work with the biggest of the founders. We work with the founder of Your Story. We work with Ritesh Malik. We work with Arjun Vaidya. And like, we work with a lot of these founders, right? Now, these are high impact people. Yeah. They hold the one of the like top brains in the country, right? Now, if I am able to put their brain out, I become the ultimate teacher because I'm allowing them to teach. So the impact that I'm making here is exponential, right? So my first thing is how much impact I'm making here. I can't make that impact. If I make content, मैं अगर content बनाऊंगा, मेरे को एक नीश पकड़ के बात करना पड़ेगा। वो impact maximize नहीं हो रहा है। अच्छा। आज मैं अगर एक फाउंडर के साथ बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कंटेंट बनाता है, इफ आई एम वर्किंग विद लेट्स से सुप्रिया फ्रॉम जोश टॉक, शी मेक्स कंटेंट मोर अराउंड हाउ जोश का इम्पैक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, इफ आई एम वर्किंग विद समबडी एल्स, you see the verticals I'm able to create impact in, not just me but my entire team. So we are impact first. So even if I become a creator, I don't think I'll be fulfilled. एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर कितना कमाता है? लेवल्स बता देता हूँ मैं। 10K फॉलोअर्स पे, 100K फॉलोअर्स पे और 1 मिलियन फॉलोअर्स पे। 3 कैटेगरी पे डिफाइन कर देते हैं इन लोगों को। इज इट इनफ एट वेरियस लेवल्स? क्या मतलब जब आपने कहा ना बैंक में पैसे आ रहे हैं या नहीं, और ये यूट्यूब इंस्टाग्राम में कैसे डिफरेंस है? और आई एम श्योर इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है कि हर कोई 10K पे इतना कमाता है, और डिफर करता होगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। व्हाट इज योर लर्निंग? Yeah, so sorry, I can't answer that because see, while my money is important, I'll only say there is enough money for everyone. I won't tell कौन कितना कमाता है, because if you want to hear this answer in order to jump into content creation, sorry boss, you can't do it. It is fundamentally against my philosophy. I do not talk about money, and it's very contradictory talking on Angel One's platform, but I genuinely do not
want to talk about money for in any context for anyone, because I believe that content creation is an obsession first subject, right? I I like you will never see me or my co-founder Divya talking about the turnovers, like we closed XYZ client. It could be big, it could be small. Nobody knows. We are known for our work, and I want everybody to be known for their work. So if you're obsessed with it, jump into it. I'll only say there's enough money for everyone. Wow. Okay. So focus on the work first, the money will flow. I'll give you a very interesting analogy. I read this in a book somewhere. I don't remember. See, world is like a flowing river. River is money, right? You have a bucket in your hand. The bucket is your value. The bigger your bucket is, that means the bigger your value is, the more water you can take out of the river. That means more money you can make. So it's all about money. पैसा तो ठीक है मतलब. What one piece of advice? I think pattern recognition एक चीज take away मिल गया. एक young 18-year-old boy or girl who is passionate about content creation in either field, कि करना है ये, बढ़िया चीज़ लग रही है, क्या एडवाइस देंगे एक स्किल पिकअप करने के लिए, प्रैक्टिकल स्किल, कि बेटा ये सीख लो. In content, right? जी, कंटेंट में करियर बनाना है एज अ क्रिएटर, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, या और भी चीज़ें जैसे हैं. क्या Yeah, है I'd say देखो technical skills तो I can't talk about, because that is a consequence of what you're obsessed about. I can't say go and learn video editing if you're not passionate about video editing. I'll talk about soft skills. Learn communication, learn values, learn ethics, learn not to ghost people at 2 a.m. Learn to communicate your problems. Learn to come and talk to people and tell how you're feeling. Learn to stay loyal to a certain organization, certain company, certain area where you are working. Learn to be patient. Learn to not expect too much from yourself in such a short span of time. Learn to not benchmark yourself against prodigies of the world. Learn to not think that social media is real. Learn that world is unfair. Wow. That is it. It's a lot, and I think that actually tells us and the viewers how much you've spent time getting to these conclusions. I don't think I've reached conclusions yet. I think I'm learning. I think I have some insights yet. I think conclusions you get at your deathbed, Wow, not early. that is very, very profound. Aryan, to a strategist, what is the perfect video? कि ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके? Okay. One liner is make a video that people click, watch, and keep watching, and then return back to watch more of it. Now, if you break down, make a video that people click to watch. So the thumbnail, the packaging, the title, the topic has to be amazing. Number two, they click to watch, so they have to watch. That means your video has to be nice, at least in the first 30 seconds. The hook part of it, basically, and they keep watching. So the entire video has to be optimized for retention, and then they return to watch more of it. That means the entire thing, the experience that you give, should ensure customer satisfaction or your viewer satisfaction, so they crave for more. So basically, YouTube, the only criteria that YouTube has, that it takes into account to judge if it would push a video or not, is customer satisfaction or viewer satisfaction. Now, satisfaction is a vague term. So how do you measure satisfaction? By all the things I said. Now, how do you measure all the things I said? By looking into data. That's it. Oh wow, okay. इसमें लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या डिफरेंस आ जाता है, कि शॉर्ट फॉर्म के लिए ये सारी चीज़ें मैटर करती है, लॉन्ग फॉर्म के लिए ये सारी चीज़ें मैटर करती है, या फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? यार सब कुछ सिमिलर है. फर्स्ट प्रिंसिपल्स तो सेम ही है ना. अच्छी वीडियो में बनाओगे, यहाँ भी डालोगे, शॉर्ट में चलेगी, लॉन्ग में बनाओगे चलेगी. कुछ फर्क है कि लॉन्ग फॉर्म में यू हैव टू थिंक ऑफ पैकेजिंग फर्स्ट. लाइक द वे यू शुड थिंक ऑफ मेकिंग अ सक्सेसफुल लॉन्ग फॉर्म वीडियो इज think of a topic, immediately think of how it would be packaged. Think of a topic, think of a thumbnail, think of a title, then go on to write the script. If you can't do that, your video will not succeed, because if you don't know how to package it well, video नहीं चलेगी. ठीक है? Short form में algorithms change more quicker than long form. So the evolution pace
of your content in short form has to be faster than long form. बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल सेम ही है यार. अगर आपको अच्छी वीडियो की डेफिनेशन पता है ना, तो आप कुछ भी क्रैक कर लोगे. मैंने जिंदगी भर यूट्यूब के लास्ट टू ईयर्स आई बीन वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम. नाउ इंस्टाग्राम इज फ्लाइंग बिकॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर क्लियर, द फंडामेंटल्स हैव टू बी क्लियर. इफ दैट इज क्लियर, तो टुमारो बोथ दिस प्लेटफॉर्म शट डाउन, you will hop on to the third one and you will still end up cracking it. As simple. क्या आपको लगता है सारे प्लेटफॉर्म्स एंड वो आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल बिहेवियर पे जाते हैं कि शायद फर्स्ट प्रिंसिपल बिहेवियर्स ह्यूमन बीइंग्स का चेंज हो रहा है? क्या सारे प्लेटफॉर्म शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसका रीज़न ह्यूमन बिहेवियर ही है कि लोग ज़्यादा छोटा कंटेंट देखना चाहते हैं? आपका क्या ओपिनियन है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? 100% ह्यूमन बिहेवियर है. सी, टेक कंपनीज आपको फीचर्स लाके देती है. They can't impose it on you. You have a choice. They put shorts, they put reels. You had a choice. Would you watch shorts or would you watch long videos? Now, putting short form content was an experiment. It was a successful experiment because people behaved in favor of that experiment. And so it's moving. कैटेगरीज, मुझे पता है आपने कैटेगरीज में पैटर्न रिकग्निशन की बात करी और कौन से टॉपिक्स ह्यूमन कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट से काम करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा वो कंटेंट देखना चाहते हैं. बट अब आपने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें देख ली होगी. 8 साल से आप 10 साल से आप कंटेंट बनाते आ रहे हैं. एक ऐसी कैटेगरी जो आपकी फेवरेट भी हो सकती है, जो आपको लगता है हमेशा काम करेगी कि ये ह्यूमन बिहेवियर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आई थिंक एक क्वेश्चन ये भी आता है लोगों के दिमाग में कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा जेनजी है, ज़्यादा मिलेनियल्स हैं या ओल्डर पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से भी ये आंसर बदल सकता है. आपके हिसाब से एक ऐसी कंटेंट कैटेगरी जो कि चलेगी ही चलेगी, ये टॉपिक कोई भी बनाए कहीं भी बनाए चलना ही चाहिए. So I won't tell you one. मैं आपको चार पांच बताता हूँ. And I'll tell you how to think because I can't spoon feed. I don't want to spoon feed to people. That's a bad way of getting into content. I'd say think of it, right? The question कि कौन सी कैटेगरी चलेगी ही चलेगी, वो कैटेगरी हमेशा कंसिस्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि वो सब्जेक्ट वो आपके लाइफ का पार्ट हमेशा रहेगा जी, है ना. Now think of सब्जेक्ट जो आपके लाइफ का पार्ट हमेशा रहेगा. और मैं बात कर रहा हूँ इररेस्पेक्टिव ऑफ हु योर ऑडियंस इज, जेन जी हो, यंग लोग हो, ओल्ड लोग हो, फर्क नहीं पड़ता. कौन सी चीज जो आपकी लाइफ का पार्ट हमेशा रहेगा और चलेगा भी. दो फैक्टर है. वन, आपके लाइफ का पार्ट रहेगा हमेशा, और सेकंड चलेगा भी. यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ हायर टैम. ओके, राइट. व्हाट इज इट? वन, मनी. पैसा सबको चाहिए, छोटा बच्चा हो बड़ा, सबको पैसा चाहिए. स्कूल की फी भरनी है या हॉस्पिटल के बिल, पैसा सबको चाहिए. रिलेशनशिप्स, छोटे हो तो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मम्मी, थोड़े बड़े हुए तो आपकी गर्लफ्रेंड, शादी हो गई तो सास ससुर से झगड़े, थोड़ी एज ओल्ड हो रही है तो वाइफ से झगड़े. तो रिलेशनशिप्स would always work. Think of it, right? So there are some fundamental, universal human problem situation that will perpetually exist and continue to exist. Those are the topics that will always work. Now figure out what they are. Money, relationships, parenting, career. What else? I think I can think of these right off the bat. Maybe food as well, but food is not as much. But everybody will eat food. Food as a category will never die. Right? So why first principle say what are the things that you do in your daily life that will never go away? Health. Yeah. एक कैटेगरी जो आपको ओवररेटेड लगती है कि कुछ ज़्यादा ही लोग ज़्यादा ही कंटेंट इस चीज़ पे बना रहे हैं और शायद इतना चलता भी नहीं हो, और आप एडवाइस करेंगे कि ये ओवररेटेड है. यार ओवररेटेड कुछ नहीं होता. अगर किसी कंटेंट में नंबर्स आ रहे हो तो वो ओवररेटेड हो ही नहीं सकता. लोग कहते हैं सौरभ जोशी क्रिंज है, हो ही नहीं सकता. आप
क्रिंज इज अ सब्जेक्टिव वर्ड, यू आर नोबडी टू जज व्हाट इज क्रिंज। जो आपके लिए हम्म क्रिंज है मेरे लिए बढ़िया हो सकता है, जो मेरे लिए क्रिंज है वो आपके लिए बढ़िया हो सकता है। हम्म आपको ब्लैक टी शर्ट पसंद है, मेरे को व्हाइट पसंद है, वी आर ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। डज हम्म दैट मीन दैट इज बैड, दिस इज गुड? फॉर यू यस, फॉर मी यस, बट सो ओवररेटेड कुछ नहीं होता। अगर उसकी अगर सौरभ जोशी के व्लॉग्स पे 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं हर दिन, हम्म that cannot be overrated. That हम्म cannot be a content piece for you, but हम्म that's still minting money. That's still getting viewers. So overrated is a flawed concept according to me. हम्म It's just people posing their individual opinions to the world, which is not how it works. अंडररेटेड का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऐसी कैटेगरी है या एक ऐसा ह्यूमन थॉट है जो लोग मिस कर जा रहे हैं आजकल की दुनिया में, कि इस पे बनाना चाहिए और ये अब जाके मेन स्ट्रीम में आ सकता है। या आप कुछ एडवाइस करते हैं कि ये एक कोर ह्यूमन थॉट या नीड है जिसको एड्रेस करनी चाहिए थ्रू योर क्रिएटर्स और थ्रू योर फाउंडर्स दैट यू वर्क विद। यार आई थिंक देखो मार्केट में गैप्स तो बहुत होते हैं, हाँ बट जी। मुझे लगता है कि दुनिया ना करेक्टिव मशीन है, तो जब जिसकी नीड होती है वो आ जाता है। ठीक है, शार्क टैंक 5 साल पहले भी तो आ सकता था, 2 साल पहले क्यों है? क्योंकि कोविड के बाद स्टार्टअप हुआ। तो मेरे को लगता है humans have this very good innate ability to be able to understanding gaps, again consciously or subconsciously, so they will do it. So again underrated कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर कोई कंटेंट पीस और उस पर नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो अंडररेटेड नहीं हुआ ना। आपने कोई ऐसा पीस नहीं बनाया जो मार्केटेबल नहीं है। सही बात। अगर आपने कोई मूवी बनाई, लोग कहते हैं यार बहुत अच्छी मूवी थी, नहीं चली, नहीं चली तो अच्छी नहीं थी, आपके लिए अच्छी थी। बट कोई भी चीज सक्सेसफुल तब होती है इफ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज नंबर्स, ओनली इफ एंड ओनली इफ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज नंबर्स। अगर वो मासेस पे जाएगी तब, और अगर वो उस पे नंबर्स नहीं आ रहे हैं और मासेस पे नहीं जा रही है तो वो कैसे सक्सेसफुल हुई? तो अंडररेटेड कोई कुछ नहीं होता। नंबर आ रहे हैं तो सही है, नंबर नहीं आ रहे तो कुछ नहीं है। कि आपको लगता है कुछ क्रिएटर्स कॉन्शियसली जानबूझ के अपने वीडियोस में गाली देते हैं बिकॉज उससे व्यूज बढ़ते हैं? हाँ, I mean, of course, like you do things. See, the game is rigged. You have to be rigged. Just that your riggedness should not cross the boundaries. Some people do that. वीडियो में तो गाली दे तो क्या दिक्कत है? If it is aligning with your brand positioning, if it is not doing bad to your audience, अगर आपकी audience बच्ची है उसमें बहुत गाली दे रहे हो, that is wrong. But if that's not harming anyone, of course, and they do. I mean that is how you have to play. It's a game, yaar. It's a game. You have to have a strategy. That is what strategy means. If you don't think consciously about what you're speaking, you're not doing it strategically. So of course. Does equipment matter? Does production matter? कि आप एक प्रॉपर क्रिएटर दिखने चाहिए फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग आउट? यार देखो, अगर आप ये सवाल मेरे से 2016 में पूछते तो मैं बोलता ना, बट आज मैं बोलूँगा यस इट डज, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देखो कोई भी इक्विपमेंट, प्रोडक्शन, आपका कपड़ा, ये सारी चीज़ें, जैसे मैगी होते हैं ना, मैगी में मसाला डालो तो वो बनता है, तो दीज थिंग्स आर लाइक मसाला टू द मैगी, बट इट कांट बी मैगी इन इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है, दिस विल नॉट मेक और ब्रेक योर वीडियो. Like you having a Rode mic or a Shure mic would not make or break a video if the audio quality is hearable enough. So have a production जो लोगों को देखने में जारिंग ना लगे, have an audio जो सुनने में बकवास ना लगे. इतना है तो nobody cares you shoot it on 4K or 1080 or a red camera. So think of the Maggi, not of the masala. एक और चीज़ जो लोग बहुत सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पे हम जानना चाहते हैं। क्या गुड लुकिंग लोगों को एडवांटेज है इस लाइन में करियर पाथ वाइज? क्या विचार है आपके? यार अगेन सेम मैगी एनालॉजी, गुड लुक्स कैन ऐड डबल मसाला टू योर मसाला मैगी, but not having an extra packet of masala won't break the taste of it. It would just not be as tasteful. मतलब अच्छे दिखते हो और अच्छा कंटेंट है तो यस एडवांटेज है, बट अच्छे दिखते हो और कंटेंट खराब है तो
of course, you can't get success. So it is not a make or break. It's a compliment. It's a complementary thing, but it's a good complementary thing to have. एक और टॉपिक जिसके बारे में आई थिंक अब लोग भी बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कितना फ्रैंक, कितना पब्लिक में बता सकते हैं और उसके रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना, क्योंकि अब ऐसी एज आ गई है क्रिएटर्स के लिए कि वो जज भी होते हैं अपने पर्सनल डिसीजंस के लिए. कहाँ पे यू ड्रॉ द लाइन? Yeah, I think just I'll say you have enough instances and history repeats itself. It's about patterns, so know the consequences. Know the consequences and know the consequences in and out. If you know the consequences, still want to do it. It's your choice. You have to bear the consequences. If you are brave enough to bear the consequences, no matter if they are good or bad, because if people were with you in good times, they will also f you in bad times. So if you can bear the consequence, do it. Just it's my personal opinion, my very personal opinion, that for kids, I'd say just show them. Showing kids in your videos are not bad. Don't misquote them. People do. And I'm explicitly not talking about vloggers, Okay. so that it does not get out of context. But some channels, I won't name, but they are like they have this 14-year-old daughter, 16-year-old daughter. They're like, putting explicit pictures out. I don't think that 14-year-old has enough of conscience to be able to give consent. So I think at least that part of it is my personal opinion. But again, know the consequences. एक नंबर भाई. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.